today's session we are going to continue our OPSC Prelims Booster Series. This is your part 4. So we are going to discuss some important MCQs which will be helpful for your exam. If I am audible, if everything is fine, please give me a response so that we can start our session. So the first question before you, what is biomining? So the first question before you, what is biomining? So go through the options and let me know. So this word it was a buzzword in news because Delhi municipal corporations, okay, so Delhi municipal corporations has recently started this biomining and bioremediation process. You know, biomining is basically the process of using microorganisms to extract metals from rock ores or mine waste, okay. So that's the correct answer of biomining. So what do you mean by biomining? Biomining kono? It is the process of using microorganisms to extract the metals from rock ores or mine waste. So usually, if you will see, so usually the metals are getting binded with this rock ores, okay, or with metals are commonly bound up with your solid minerals. So there are some microbes which can oxidize those metals and it will allow them to dissolve in water, and that is the technique. So in which biomining is used. So basically you can say that biomining is a technique for which through which we can extract the metals which is of economic importance, okay. So the metals which are valuable, that you can say, so the metals that can be extracted from these rock ores. So this technique is called as your biomining, and we are doing with the help of this microorganisms. All clear? So here B will be the correct answer. Let's go to next question. UNFCCC. So UNFC, United Nations Framework Classification of Resources, it deals with, please go through the options, then we will discuss.
Fine. So we have UNECE. Please note it down. United Nations Economic Commissions on Europe. Okay. So we have UNECE, United Nations Economic Commissions on Europe. It has adopted in 2004. So 2004 रे so हमारा UNFC को adopt अपन को करा जाइथिला, United Nations Framework Classification for Resources. Okay. So UNECE has adopted UNFC in 2004. So the primary aim of this UNFC is, or the primary responsibility of this UNFC is, so it is a principle that you can say, or it's a user friendly system for classifying, managing, reporting mineral or petroleum based renewable sources, anthropogenic resources. These are primarily the criteria, so which are classified and which are managed by UNFC, United Nations Framework Classification for Resources. So here answer will be classifications and management of global minerals and various energy resources. So here you will have your renewable energy resources, anthropogenic resources, okay, so petroleum resources, mineral resources. So all these are classified and these are managed by UNFC. So this is a part of UNECE, United Nations Economic Classifications on Economic Commissions on Europe, which has been adopted in 2004. Clear? So this is a current affairs question. So UNFC, it may be asked, UNFC, United Nations Framework Classification for Resources, was in news. So that's why this question I have given. So it is associated with classification and management of global minerals and various energy resources. Is this thing clear? So if you will see, this UNFC has basically 3 dimensions. So it has 3 axes. Okay. So basically UNFC is a, so it is classified into your 3 dimensions. So that is your E axis, F axis and your G axis. So this G axis is basically stands for geological assessment. You can note, you can write it down. So this G axis is your geological assessment. It stands for geological assessments. E axis stands for your economic viability. Clear? And F axis stands for your feasibility assessment. Feasibility assessment. So this UNFC, United Nations Framework Classification for Resources, it is a 3-dimension system with these 3 axes. So that is your E axis, F axis, G axis. So it is primarily, UNFC system is basically a policy formulated for this energy and raw materials that you can say, and it is primarily responsible for corporate business process and for classification and management of these global minerals and various energy resources that we have discussed. And it stands with your 3 axes, that's your economic viability, E axis, F axis is your feasibility assessment studies, and G axis is for your geological assessment. So where general explorations or detailed exploration is done, how this mineral will be extracted and how it will be managed. So this is the primarily the work of UNFC. Let's go to next question. Consider the following statement about your antibiotics. Please go through the option. Please go through the options. Antibiotics. Yeah, very good morning. If you have any doubt, then please let me know. Sound is clear? Is this fine right now?
ओके फाइन ठीक अच्छे सो देखी नियंतु बाकी मु आज ना ओके ओके ऑल गुड so see antibiotics are effective against bacterial infections and viral infection is this statement true or false please let me know so antibiotics are effective against bacterial infections and viral infections this statement is true or false so antibiotics you know these are effective against your bacterial infections right not your viral infections antibiotic generally these are the antibiotics are the drugs or the substances that you can say which inhibits bacterial growth am I right or which prevents bacterial growth so basically it prevents your bacterial growth not your virus right so bacteria grow hobaru jahaku bonchae ताको हमें एंटीबायोटिक्स आपनकर कहू ठीक ना नहीं सो साधारणतः जेतले हमर किछि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपन हुए सो आमे कोन करू ना एंटीबायोटिक्स आपन खाइ दो तो आमे कहि परिबा एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच किल्स द बैक्टीरिया which kills bacteria or which prevents bacterial growth ठीक which prevents bacterial growth or which kills bacteria so that's why it will not be your viral infections hoba nahi it will be your bacterial infections only so for that reason statement 1 is wrong is this statement clear samaste bujhi parle ki all good so antibiotics if you will see it may be derived from your microorganisms or it may be synthesized in your laboratories if it is derived from your bacteria then it will call as your natural antibiotics if it is prepared in laboratory then it will be called as your synthetic antibiotics okay so it may be your natural if it is produced from the microorganisms okay if it is produced from the microorganisms and if it is produced in the laboratories then it is called as your synthetic antibiotic am I right then go through the second option penicillin is an example of an antibiotic this statement is true or not definitely apan mane choto belu podi asuchanti so penicillin is an antibiotic which has been developed by this question is commonly asked in your SSC CGL and ASO the answer will be your Alexander Fleming am I right Alexander Fleming invented this antibiotic so which is commonly asked in your exam okay please go through this statement penicillin is an example of antibiotic this statement will be definitely true am I right so this statement is definitely true it was developed by Alexander Fleming in your 1928 right Alexander Fleming developed this antibiotic in your 1928 so answer will be your B second only is your correct one if you have any doubt then please let me know yes antibiotics must be regulated so सेति पे कि हमें तंको कहूचे दैट आपनकर डॉक्टर स्पेसिफाई कइबा दरकार बिकॉज कोन हुए ना एंटीबायोटिक्स हमें नेले हमर बैक्टीरिया जोटा कि आपनकर इन्फेक्शंस करथिबो ताकू तो मारिबो ता सहित हमर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जोटा आपन थिबो सो सम बैक्टीरियाज आर गुड फॉर आवर डाइजेशन राइट फॉर आवर गट्स सो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को अफेक्ट करे सो दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक्स मस्ट बी कंज्यूम्ड इन ए रेगुलेटेड मैनर केवल से इन्फेक्शन पीरियड को काटिया पई गोटे 3 दिन रो कोर्स बा 5 दिन रो कोर्स किछि घा सुखिया पई सो एई बली भाबरे ताको गोटे रेगुलेटेड मैनर रे प्रेस्क्रिप्शंस मैनर रे प्रेस्क्राइब्ड मैनर रे एज पर द सजेशंस ऑफ डॉक्टर इट इज यूजुअली कंज्यूम्ड सो नहले एंटीबायोटिक बॉडी आपन रेजिस्टेंस आपन हे जिवो एंड हमर गुड बैक्टीरिया को मध्ये ही अफेक्ट करे सो दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक्स आर रेगुलेटेड थैंक यू ओके ऑल क्लियर सो दैट्स द बी आपन कटी करेक्ट स्टेटमेंट होबो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ द अबव डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया हाउ मेनी ऑफ द अबव डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फाइन
So basically typhoid, so typhoid fever जो हमर को हुए, so हमको it is caused due to your salmonella typhi, right? Bacteria ना होची आपनकर salmonella typhi. So this is the bacteria which causes your typhoid fever, am I right? So A is a, so salmonella typhi is a bacteria that you people are well aware, ठीक ना नहीं? So malaria आपनकर केमिति हुए ना anopheles mosquito सकस आपन हुए. So basically it is your protozoa सकस आपनकर हुए, ठीक तो? So protozoa, not your bacteria. So it's primarily responsible होचे आपनका protozoa, that's your anopheles mosquito causes your malaria fever. Third one होचे आपनका cholera. So cholera आपनका केमिति आपन हुए ना जेतला में infectious food and water जेतला में body की consume आपनका करूचो. So यार the bacteria which is responsible is your, so को bacteria सकस हमरो ये हुए cholera हुए. तो correct answer आपन कोन हबो? So which bacteria? That's your anyone? So ये क्वेश्चंस मध्ये ए सरे पचरा हितला. तो आंसर होचे आपनका vibrio cholera, right? So vibrio cholera, so this is the bacteria which causes your cholera, ठीक ना? So it is a diarrheal infection that you can say which is caused by eating or drinking food or water which is contaminated with your vibrio cholera bacteria, ठीक है? Clear? So ताले आंसर अपन कोन हबो? So typhoid and this cholera. So these two are the primarily, these are two are the diseases which are caused by bacteria. The answer will be your B, only two, right? All clear? Yes, if you are suffering from typhoid, then you have to use your antibiotics. So typhoid पाई हमरा antibiotics आपन अछि. So to prevent this typhoid, we have your antibiotics which can be used. Similarly for cholera, you have to take your OCV, oral cholera vaccine is used to prevent this cholera. Okay, so let's go to next question. In the context of genetics, gene drive is, please go through the options. Thore पढ़ी नियंतु, then we will discuss what's your correct answer. Fine. So the correct answer will be, what is gene drive? Gene drive is a genetic engineering technique to increase the likelihood of a gene being inherited. So basically it is a genetic engineering technique that you can say which is used to increase the likelihood of a gene that is being inherited. So basically we have two types of inheritance. One is through your normal inheritance. So as per your that is called as your Mendelian genetics, and another is your gene drive mechanisms. So here we are inheriting a specific gene over 90% or often nearly 100% of offspring that you can say, which is achieved using tools like your CRISPR-Cas9 technique, that is called as your CRISPR. So that is called as your CRISPR-Cas9 technique. So basically through which your unmodified copy of the gene in the offspring's genome is cut and it is replaced with the modified versions with your DNA. So that specific gene
okay, so that specific qualities can be inherited. Okay, so this is a genetic engineering technique. So जो थरे कि आमे जीन टाको modify आपन को करू so that आपन को inheritance specific gene रो inheritance टा आपन को likelihood टा आपन को बढ़ी जिवो. So as a result कोन हबो ना all offsprings inherit the modified genes and it spreads through the populations at a very accelerated rate that you can say. So here B will be your correct answer. Clear? All clear? सो आमर जो मॉडिफाइड डीएनए टा आपन रहिथिबो से मॉडिफाइड डीएनए टा ही आपन इनहेरिट आपन हबो बा आपन ट्रांसफर हबो टू योर ऑफस्प्रिंग. सो दैट इज द टेक्निक. सो दिस इज अ जीन ड्राइव आमे ताको कहूजे. सो जीन ड्राइव रे आमे जीन टाको मैनिपुलेट आपन करिया चेष्टा करछे एंड दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशंस. क्लियर? सो जीन ड्राइव रे आमे कोन करछे ना जीन को मैनिपुलेट आपन करछे. सो जोथिरे आमे कहूचे जे मॉडिफाइड जीन आमे कहूचे, राइट? तो जीन इज मॉडिफाइड. So basically specific attributes are getting transmitted from one generation to the next generation. That is called as your gene drive. Clear? बुझी होची समस्त करो. तो बेसिकली एटा को कोन कहूचे हमें ना एटा को जो गोटे जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक हमें कहूचे. सो जो थरे कि वी आर इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ ए जीन बीइंग इनहेरिटेड. ओके, सो इट इज गेटिंग इंक्रीज और इट इज गेटिंग एन एक्सेलरेटेड रेट रे हमर जीन टा ट्रांसमिट अपन हबो टू योर अदर पॉपुलेशन टू योर नेक्स्ट जनरेशंस. ओके, सो जो टारगेटेड जेनेटिक ट्रेट अपन रहिथिबो सो हमें एंश्योर अपन को करूचे जीन ड्राइव रे जे जो टारगेटेड जीन ट्रेट को हमें चाहूचे सो ट्रांसमिट अपन करिया पई तो सेटा गोटे एक्सेलरेटेड मैनर रे ट्रांसफर अपन हबो. ऑल क्लियर? बुझी हला समस्तंकर. सो बी अपन को करेक्ट आंसर. इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु. सो किछटा हार्वेस्ट फेस्टिवल देछि एवं किछटा स्टेट अपन देछि. सो व्हिच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच्ड? प्लीज ट्राई टू आंसर. All of you please try to answer. Important question. All these questions are important from your exam perspective. Okay. So जहाँ को हमें मकर संक्रांति कहूचे, पोंगल कहूचे, माघ बिहू कहूचे, fine. So all these are your same festivals. So but it has different names in different states. So which of the following is your correct? तो first अपन देखो that is your पोंगल. So Pongal is your Pongal is the festival which is observed in your Tamil Nadu, right? So Pongal apangro Tamil Nadu re apangro festival ame observe apan koru. So this statement is correct one. Second hoche apangro Kicheri. Second hoche apangro Kicheri which is specified in which is observed in Rajasthan. Is this statement true? No. So Kicheri apangro कोठी apangro हुए. So Kicheri apangro कोठी apangro कहा जाए. That's in Uttar Pradesh. आम ओडिशा रे कोन कहा जाए? आमर ओडिशा रे ताको हमें कोन कहू? मकर संक्रांति. मकर संक्रांति. ठीक अच्छे. सो किचेरी होची आपनकर उत्तर प्रदेश रे. लिखि दियंतु जो मन लिखिया को चाहउछंदी. ऑल क्लियर? फाइन. सो राजस्थान रे कोन कहा जाए? के कहि परिबे? सो राजस्थान रे कोन कहा जाए? बेसिकली एटा होची गोटे आपनकर काइट फेस्टिवल आपन समझ जानिचंती, राइट? सो हम ओडिसा मध्ये में पॉपुलरली मकर संक्रांति रे हमें सब गुडी उडो, राइट? सो गुडी पडवा मध्ये तको आपन कहा जाए. सो राजस्थान रे तको उत्तरायण बोली के कहा जाए. लिखि दियंतु. राजस्थान रे तको राजस्थान हैला, गुजरात हैला. ओके, राजस्थान हैला, गुजरात हैला. सो एकु उत्तरायण आपन को कहा जाए. ना गुडी के मध्ये मन रखिथंतु. सो एग्जाम रे एम्ति क्वेश्चंस आपनकर आसुची पचारुची. ओके फाइन. तापर आपन देखंतु शिशुर संक्रांत. शिशुर संक्रांत आपनकर शिशुर संक्रांत आपनकर कोठी हुए? दैट इज ऑब्जर्व्ड इन योर जम्मू कश्मीर. ये सब होची गोटी फेस्टिवल तार सब अन्य अन्य ना. ओके, सो रिसेंटली हमर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हमर जो ग्रीट करथिले आपनकर मकर संक्रांति रे. सो जोरे कि आपनकर यूजुअली हमर जनवरी 13 जनवरी 14 रे आपनकर पड़े. जनवरी 13 14 रे. फाइन. सो वेरियस रीजन्स रे ताको हमें वेरियस वे रे वेरियस माने नेम रे ताको हमें कहू. जेमिति कि हम वेस्ट बंगाल रे ताको पौषु संक्रांति आपनकर कहा जाए. वेस्ट बंगाल रे ताको पौषु संक्रांति आपनकर कहा जाए. आमर ओडिशा रे जेमते में मकर संक्रांति अपन कहूचे सिमिलरली ताको अपन पौषु संक्रांति अपन कहा जाए. फाइन. पौष मास रे होतुवारु. आंध्र प्रदेश रे ताको अपन पेड़ा पांडुआ अपन कहा जाए. आंध्र प्रदेश रे ताको पेड़ा पांडुआ ताको अपन कहा जाए. ओके, सो पोंगल होचे अपन तमिलनाडु रे. किचेरी होचे अपन उत्तर प्रदेश रे. राजस्थान गुजरात रे ताको उत्तरायण बोली के कहा जाए. ओडिशा रे ताको मकर संक्रांति बोली के कहा जाए. शिशु संक्रांत होचे अपन जम्मू कश्मीर रे. ऑल क्लियर? वेस्ट बंगाल ताको पौषु संक्रांति अपन कहा जाए. ठीक अछि. माघ बिहू होचे आसाम रे. आसाम रे ताको माघ बिहू अपन को कहंती. यस, आसाम रे ताको माघ बिहू बोली के ताको अपन को कहा जाए. गोटे बहुत ही बड़ा फेस्टिवल अपन आसाम रे अपन हुए. ठीक अछि.
ऑल क्लियर बहुत सारा एमती ना अच्छे जमीक आप लोहरी पंजाब रे ताको लोहरी कह जाए इन पंजाब इट इज नोन एज योर लोहरी फेस्टिवल फाइन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन so the term bhargavastra is seen recently in the context of which of the following bhargavastra सो रिसेंट कंटेक्स्ट रे ये क्वेश्चंस आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन रिसेंट कंटेक्स्ट रे ये बहुत ही न्यूज रे आपन रहितला सो दिस भार्गवास्त्र आपनकर कोन सो इट इज ए मॉडर्न माइक्रो मिसाइल सिस्टम्स व्हिच इज डेवलप्ड बाय योर इंडियन आर्मी डिफेन्स आमर ताको आपनकर तयारी करिछि ओके सो मन रखिथांतु तो आमर ये कोन करिवो ना आपनकर 6 किलोमीटर दूर रु ओके सो अबव योर 6 किलोमीटर तो ये कोन करिवो ना आपनकर मिसाइल को न्यूट्रलाइज आपनकर करि परिबो जदी किछि आपनकर ये होछ हमर फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम्स आपन मन रखंतु जहा ना दिया आइछे भार्गवास्त्र इट इज डिजाइन टू काउंटर सो साधारणतः हमर जो एबे ड्रोन थ्रेट्स आपन आसु से ड्रोन्स को आपन न्यूट्रलाइज आपन करिवो सो बियॉन्ड योर 6 किलोमीटर इट एड्रेसेस द इंक्रीजिंग थ्रेट पोस्ड बाय द स्वार्म ड्रोन्स ओके सो दैट्स व्हाई this Bhargavastra was designed and it has been designed by Army Air Defense लिखि जंतु हमरो Army Air Defense has recently developed this micro missile okay so this micro missile that's your Bhargavastra so जो थरे कि at ranges exceeding 6 kilometers को हमरो micro munitions रे ताको न्यूट्रलाइज अपन करि परिबो and हमरो जो आमर जो स्वार्म ड्रोन्स अपन रही ओके सो इस स्वार्म ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज अपन करिया पई तो एई माइक्रो मिसाइल सिस्टम्स डेवलप अपन को करिछि इंडिया एंड एको सक्सेसफुली टेस्ट अपन को करिछि सो साधारणतः हमर ड्रोन थ्रेट को केमते काउंटर अपन करा जिवो सो दैट इज द मेजर ये बिकॉज़ अपन जानछन एबे वर्तमान हमर जो अटैक होछि अपन को थ्रू योर ड्रोन्स होछि सो ई स्वार्म ड्रोन्स अटैक को प्रिवेंट अपन करिया पई सो इंडिया एई मिसाइल को माइक्रो मिसाइल को हमें टेस्ट अपन को करिछि सो आर्मी एयर डिफेंस को अपन डेवलप करिछि सो इट इज ए मॉडर्न माइक्रो मिसाइल सिस्टम्स डेवलप्ड टू एड्रेस द इंक्रीजिंग थ्रेट्स पोस्ड बाय द स्वार्म ड्रोन्स all clear बुझियला it is a fast micro yes it is a fast micro missile based counter drone systems you can say okay ठीक अछि स्वार्म ड्रोन्स अपन को कोन ओके सो स्वार्म ड्रोन्स अपन को कोन सो कहि दोछि स्वार्म ड्रोन्स होछि अपन को दीज आर ग्रुप ऑफ ड्रोन्स दैट यू कैन से सो अपन को गोटे गोटे ड्रोन्स अपन आसीबनी सो अपन को ग्रुप ऑफ ड्रोन्स अपन आसीबो एंड सेमान आसीकिनी अटैक अपन को करिवे तो दीज आर द ग्रुप ऑफ ड्रोन्स दैट ऑपरेट टुगेदर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशंस ऑफ ह्यूमन रो डायरेक्ट कंट्रोल न रहिकिन से माने ग्रुप ऑफ ड्रोन्स अपन को थरे तांको सेट अपन को करा जिकि ताको छडा जिवो तो से माने एम्ति वेरियस माने गोटे ग्रुप ऑफ ड्रोन्स अपन आसीकि से माने अटैक करनते तो एंको न्यूट्रलाइज अपन को करि परिबो ए भार्गवास्त्र ऑल क्लियर स्वार्म ड्रोन्स आर ग्रुप ऑफ ड्रोन्स सो दैट टारगेट विदाउट योर ह्यूमन इंटरवेंशंस ताको हमें स्वार्म ड्रोन्स अपन कहूचे सेठी ह्यूमन इंटरवेंशंस अपन को किछि नथिबो क्लियर माने ह्यूमन ताको कंट्रोल अपन को करन थिबो ताको गोटे एल्गोरिथम गोटे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ताको दिया जिवो ताकर एक्शंस को कोऑर्डिनेट अपन को करा जिवो ओके जेमति कि अपन को हमें जेमति कहूचे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ओके जेमति कि माने इट्स ए ग्रुप ऑफ ड्रोन्स बेसिकली एमति ड्रोन्स उडा ग्रुप हे कि अपन आसीबो एंड से माने ताकर माने ताकर काम करिवे ओके एनिमी डिफेंस को डिस्ट्रॉय करिवे से माने से किछि सर्च अपन करिवे बा किछि अपन को काहा को स्पाई अपन करिवे सो व्हाटएवर जा भी ताकर कम्युनिकेशन एल्गोरिथम अपन हितबो सेही हिसाब से माने काम करिवे फाइन सो गोटे तांको एल्गोरिथम सेट करै कि तांको छडा जाइथो Let's go to next question. The term escapade, punch, codex recently seen in news are associated with it is a current affairs question. ठीक आंसर करंतु. The term escape, punch, codex these are recently in news. So all these are
सो बेसिकली ये हूँ सब नासा रो सोलार मिशंस राइट सो अपन एस्केप कोंतु पंच कोंतु कोडेक्स अपन कोंतु ऑल दीज आर योर various solar missions of your NASA's various solar missions so हमर जो सोलर एटमॉस्फेयर को रिसर्च एंड एक्सप्लोर अपन को करिवार जो प्रयास रही नासा रो सो तार ही ये होची आपनकर वेरियस सो ये होची आपनकर वेरियस मिशन सो जो थरे कि आपनकर एस्केपेड अपन खला पंच हला कोडेक्स अपन खला तो केमिति सोलर एटमॉस्फेयर को केमिति स्टडी अपन को करा जिवो जेमिति कि आपनकर एस्केपेड होची आपनकर जो मार्स चारिपटे सो हमर जो एटमॉस्फेयर होची ताको केमिति स्टडी अपन को करा जमती कि पंच अपन हला पंच होची अपन सन रो आउटर एटमॉस्फेयर जो रही कोरोना ओके सो से कोरोना को स्टडी अपन को करिया पई सो कोरोना को स्टडी करिया पई हमरो पंच अपन रही दैट इज अ पोलरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड योर हेलियोस्कोप सो बेसिकली ऑल दीज आर योर सोलर मिशंस ऑफ योर नासा सो दैट यू कैन रिमेंबर सो एटी ए हमरो करेक्ट आंसर हबो ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the metamaterials consider the following statements so they are made from your nanomaterials they can be invisible under the light which of the statement is given above is correct कोन ठीक है समझते take your time and try to answer so this is a questions of your on your metamaterials अपन कोन ओके फाइन सो आमर जो कन्वेंशनल मटेरियल्स अपन रही दैट्स योर मेटल्स प्लास्टिक्स ओके सो मेटल्स प्लास्टिक्स सो एथरू ही मेटा मटेरियल्स गुडी को अपन प्रस्तुत अपन हुए सो मेटा मटेरियल्स यू कैन से सो दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कन्वेंशनल मटेरियल्स ऑफ मेटल्स एंड प्लास्टिक्स बट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर मेटल्स एंड प्लास्टिक्स क्लियर सो इट इज ए स्पेशली इंजीनियर टेक्निक रे ताको अपन डेवलप अपन करा जाउची सो स्पेशली इंजीनियर स्ट्रक्चर्स द्वारा ही एको अपन डेवलप अपन करा जाउची अपन मेंशन अपन करि परिबे सो स्पेशली इंजीनियर स्ट्रक्चर द्वारा सो तयारी अपन करा जाउची फ्रॉम दिस मेटल्स एंड प्लास्टिक्स बट द प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर मेटल्स एंड प्लास्टिक्स ओके सो दैट मींस इट इज गोइंग टू बिहेव इन एन अनयूजुअल वेज सो द जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स रे तयारी अपन करा जाउची सो इट कैन डिफर सो द लाइट एनर्जी हीट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो ये अपन तार जो रेस्पोंड अपन को करे तो से कंप्लीटली अनयूजुअल वे रे ताको रेस्पोंड अपन करिवो एंड इवन अपन विजिबल लाइट रे भी इनविजिबल अपन हेई परिवो सो देयर आर सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स मेड फ्रॉम योर नैनो मटेरियल्स नो सो इट्स मेड फ्रॉम योर मेटल्स एंड प्लास्टिक्स ओके सो अपन स्पेशल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स रे होची अपन द्वारा सो प्राइमरली तैयारी अपन करा जाए बट देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेटल्स एंड प्लास्टिक साधारणतः मेटल्स एंड प्लास्टिक रो जो प्रॉपर्टी अपन रहे ताठरी कंप्लीटली भिन्न बिकॉज जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स अपन व्यवहार अपन कराउची तो से कोन करूची ना हमर लाइट एनर्जी हीट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंप्लीटली मैनिपुलेट अपन को करि दोची फाइन सो दे कैन बी इनविजिबल अंडर द लाइट यस सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अपन को कहउतली सो बेसिकली ए जो स्पेशल इंजीनियरिंग टेक्निक द्वारा हम देखु जो तैयारी अपन को करूचे सो यार नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन रहउची ओके सो द प्राइमरी रीजन होची अपन यार नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेतु अपन रहउची सेति पे कि विजिबल लाइट रे सो ये कंप्लीटली इनविजिबल अपन हे जाउची सो ड्यू टू इट्स नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर मेटा मटेरियल्स ऑल क्लियर बुझी होची कि समझते सो हमर जने साइंटिस्ट तांका ना अपन रहउची विक्टर भासेलागो ये डायरेक्टली फैक्चुअल बेस क्वेश्चंस अपन पचेरी पारे सो हमर जो मेटा मटेरियल्स अपन रहला सो इट इज डेवलप्ड बाय विक्टर भासेलागो एबे भी सेटा अपन लैबोरेटरी टेस्टिंग फेज रे अपन अछि सो विक्टर भासेलागो ताको अपन सो प्रपोज्ड अपन करथिले सो ए को थियोरेटिकली से प्रेडिक्ट अपन करथिले अबाउट दिस मेटा मटेरियल्स एंड राइट नाउ आपनकर तारी ऊपर रिसर्च अपन चली छी सो नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन कोन ना तो लाइट अपन ता द्वारा तो अपन पास करे जिवो इट विल बेंड योर बैकवर्ड ओके सो फॉर दैट रीजंस इट इज योर इनविजिबल अंडर द लाइट कौन सी कुछ जेतल तक ऊपर लाइट अपन पड़ुची इट विल कंप्लीटली बेंड अवे ओके सो हमकु सेति पे कि मेटा मटेरियल्स अपन देखा जाए नाही सो इट इज इनविजिबल अंडर द लाइट तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो so B second only अपन correct होबो all clear meta materials are different from that of your nano materials fine clear
Fine. Let's go to next question. Which of the following statements correctly describe the function of your plant tattoos? Please go through the options, then we will discuss. फाइन. सो बेसिकली टैटूज आपंकर ये भी अगेन न्यूज रे अपन रहितला ये रिसेंट अपन डेवलपमेंट अपन हेची तो साधारणतः हमर जो गछ रहउची से गछर प्लांट रे ओके so we can attach this sensor. So basically tattoos are nothing but a sensor. So जहाँ को आपंकर प्लांट्स रो लीव्स रे ओके ताको आपंकर स्पेसिफाई ताको आपंकर प्लेस अपन करि परिबे एंड थ्रू व्हिच इट कैन मेजर केते वाटर यूज आपंकर होची केते रेट से ट्रांसपिरेशन आपंकर होची फाइन. सो केते आपंकर माने केते को अमाउंट रे सो गछर रूट्स रू सो आपंकर लीव्स को आपंकर वाटर आसुची तो ये सब जिंस को आपंकर मेजर अपन करि परिबे थ्रू सेंसर. तो लाभ कोन हबो ना हमर जेमति कि ड्रॉट प्रोन एरियाज अपन रहिची जो सब ड्रॉट प्रोन एरियाज रहिची सो सेठी आमे एग्रीकल्चर को इंप्रूव अपन करि परिबा. तो मेन एम होची आपंकर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव अपन को करिबा. सो तांकर सर्वाइबिलिटी रेट को अपन बढ़ाइबा एफिशिएंटली आपंकर एफिशिएंटली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपन को करिबा फाइन. सो प्रॉपर भलो मैनेजमेंट अपन करिबा तो को गछ को केते अमाउंट अपन पानी दरकार था ये सब हमें स्टडी करि परिबा. बेसिकली दीज आर सेंसर्स व्हिच आर मेड ऑफ योर ग्राफीन और सम अदर मटेरियल्स बेसिकली जोटा कि हमें प्लांट रो लीव्स रे तको हमें अटैच करू एंड सेथरे से मॉइस्चर लेवल वाटर यूज ट्रांसपिरेशन रेट्स ऑफ द क्रॉप्स ऑल दिस थिंग्स कैन बी मेजर्ड. ऑल क्लियर बुझी पाले कि तो साधारणतः टाटू होचे आपनकर इट इज अ वेरी लो कॉस्ट चीप सेंसर्स आपनकर कुआ जाय परिबो जोटा को हमें गछर प्लांट से तको हमें रखुचे. सो हमें कोन कर परिबा ना वाटर रो मूवमेंट को मॉनिटर अपन करि परिबा तो जोटा कि आपनकर रूट्स थ्रू प्लांट्स को आपनकर आसुची फाइन. सो इरिगेशन प्रैक्टिसेस पे हमको हेल्पफुल अपन खबो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स पे हमको हेल्पफुल अपन खबो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़िबा सहित हमर वाटर यूजेस को हमें ऑप्टिमाइज अपन करि परिबा. सो इट मेजर्स द वाटर यूज एंड ट्रांसपिरेशन रेट्स इन क्रॉप्स. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. इफ इज दिस क्लियर समस्त बुझी पाले क्लियर की ना आउथरे अपन कहबी टैटूज आर लो कॉस्ट सेंसर्स बेसिकली तो जहाँ को हमें गछर प्लांट्स लीव्स रे ताको हमें प्लेस अपन करू एवं जहाँ द्वारा वाटर को हमें मॉनिटर अपन को करू फाइन. सो हमर रूट्स रू सो अपन लीव्स को केमिति अपन केते मात्रा रे अपन पानी जाउची फाइन. सो कोड अपन ड्रॉट रीजन से रहउची का को अपन अधिका पानी दरकार तो ये सब जिंस को हमें मिनिमाइज ये सब जिंस को हमें मॉनिटर करि परिबा एंड नेसेसरी एक्शंस हमें नै परिबा. सो दैट ड्रॉट रेजिस्टेंस जो अपन रहितिबो सो जो ट्रीज गुडी को अधिका पानी दरकार फाइन बा तार मॉइस्चर लेवल केते रहउची तार वाटर यूज केते रहउची तार ट्रांसपिरेशन रेट्स केते रहउची ये सब को हमें मैनेज करिकि हमें वाटर यूसेज को ऑप्टिमाइज अपन करि परिबा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हमें एनहांस करि परिबा. दैट्स द प्राइमरी एम ऑफ दिस टैटूज सेंसर फाइन. टैटूज होची अपन सेंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली कैरेक्टराइज एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स रे समस्त एडियाबैटिक प्रोसेस अपन पढिथिबे. दैट्स द नो हीट लॉस. सो नो नाइदर हीट गेन नॉर हीट लॉस राइट. फाइन. सो अपन समझे थर्मोडायनामिक्स अपन को पढ़िथिबे. थर्मोडायनामिक्स बेसिकली डील्स विथ योर हीट वर्क एंड योर एनर्जी am I right. सो बेसिकली हम ताको कोचे Q = U + W अपन को कुआ जाय. सो हीट होचे अपन को Q, U होचे हमर इंटरनल एनर्जी एंड हमर W होचे अपन को वर्क डन राइट. सो बेसिकली हीट एनर्जी वर्क ऊपर जो हमें स्टडी अपन को करूचे ताको हमें थर्मोडायनामिक्स अपन को कहूचे. एडियाबैटिक प्रोसेस कोन ना दिस इज एन यूनिक प्रोसेस जो थरे कि कोन से हीट एक्सचेंज अपन हुए नाही. सो जो थरे कि हमें सो हमर नाइदर हीट गेन हुए नॉर हीट लॉस हुए.
सो इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच नो हीट इज एक्सचेंज सो इट इज सी मोर करेक्ट आंसर अपन हे जिवो ऑल क्लियर सो एडियाबेटिक प्रोसेस अपन एडियाबेटिक प्रोसेस होची अपन जोथर कोनोसी अपन हीट एक्सचेंज अपन हबो नाही विथ द एनवायरनमेंट तो जदि आमे गोटे एनवायरनमेंट को कंप्लीटली इन्सुलेटेड अपन को करि दोचे ऑल क्लियर जदि से एनवायरनमेंट को आमे इन्सुलेशन अपन को करि दोचे मन रखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सो भाबि नंतु ए जो मटेरियल्स अपन रहिछि एटा कंप्लीटली इन्सुलेटेड अपन रहिला सो इन्सुलेटेड रहिला माने कोन हबो इफ इट इज इंसुलेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द एनवायरनमेंट तार एनवायरनमेंट जदि सेटा कंप्लीटली इन्सुलेटेड अपन रहिला तो इन्सुलेशन से अपन जानचंती देयर इज नो हीट गेन नो हीट लॉस ऑल क्लियर neither heat gain habo na heat loss habo all clear so that means there is no heat is exchanged with the systems so jadi gote systems ame insulated कर देबा तो आमे adiabatic systems गोटे अपन पाई जिबा all clear or not समझ बुझी पाले कि बा आमर जतले इंटरनल एनर्जी ओके जतले आमर इंटरनल एनर्जी अपन q जतले अपन 0 हे जिवो सो u इज इक्वल टू w अपन हे जिवो फाइन सो दैट मीन्स ओके सो दैट मीन्स आमर जतले इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ताको हमें एडियाबेटिक प्रोसेस अपन कहिबा ऑल क्लियर सो हमें कोन करिबा दैट मीन्स हमें या माने अपन कोन ना हमें प्रोसेस को एते कंडक्टिंग भी करिबा सो दैट देयर इज इनसफिशिएंट टाइम फॉर योर हीट ट्रांसफर फाइन सो किसी टाइम ही रहिबनी हीट ट्रांसफर पाई माने एते कंडक्टिंग अपन हबो सो आइदर पूरा कंप्लीटली इन्सुलेटेड कर देबे नले एते अधिका कंडक्टिंग अपन करिवे सो देयर इज इनसफिशिएंट टाइम फॉर हीट ट्रांसफर हवा पई समय ही नथिबो इनसफिशिएंट टाइम फॉर हीट ट्रांसफर सो दैट इज आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस रे ये मध्ये गोटे अपन सिचुएशन हेई पारे बुझी पाले समस्ते एडियाबेटिक प्रोसेस माने सबले अपन मन रखंतु सो हीट अपन हीट एक्सचेंज अपन हबो नाही ओके सो देयर इज नो हीट एक्सचेंज नाइदर हीट गेन नॉर हीट लॉस बुझियला तो सी हमर एठे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू नेशनल लाइवस्टॉक मिशन ऊपर दुटा स्टेटमेंट अपन देछि तीनटा स्टेटमेंट देछि ठीक देखि नियंतु नेशनल लाइवस्टॉक मिशन फाइन सो देखंतु नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अल्प बहुत समस्त अपन जानि परथबे सो इट एम्स टू एंश्योर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन लाइवस्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम्स ठीक ना नहीं सो हमर जो लाइवस्टॉक्स अपन अछि हमर जो कैटल्स अपन अछि राइट सो मीट मिल्क अपन रहिला तो यार केमते क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट अपन हबो सो सेति पय कि हमर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अपन लॉन्च अपन हेछि सो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट राइट कहार के डाउट ही नथिबो It focuses exclusively on cattle and buffaloes and excludes small ruminants and poultry. Small ruminants माने जेमति कि sheep हला goat हला सेगुडी को कहूची एगुडी को बाद दिया जायछि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन से जो स्टेटमेंट है कि फॉल्स आपनकर इट आल्सो इंक्लूड्स ओके खाली कैटल्स एंड बफालो नुहे खाली काउ और बफालो अपन नुहे सो या सहित हमर जो सीप हला गोट हला पोल्ट्री हला फाइन सो एग प्रोडक्शंस अपन हला मिल्क प्रोडक्शंस अपन हला ये सब गुडी को अपन नेशनल लाइवस्टॉक मिशंस रे इंक्लूड अपन हेची ओके तो जो स्मॉल रुमिनेंट्स रा कथा अपन कहउछथि गोट्स होची सीप्स होची सो अपन पिग्स हो बा कैमेल्स हो या कोई समस्त अपन आसुछंती तो यार मुख्य उद्देश्य अपन कोन ना हमर मिल्क प्रोडक्शंस केमते होलिस्टिकली बढ़िबो केमते मीट प्रोडक्शंस बढ़िबो केमते एग प्रोडक्शंस बढ़िबो केमते ऊल प्रोडक्शंस बढ़िबो जेमति कि सीप रो में ऊल पाउचे तो ये सब प्रोडक्टिविटी को केमते हमें इंक्रीज अपन को करिया पई हमर नेशनल लाइवस्टॉक मिशंस को लॉन्च कराइछि समस्त बुझी पाले कि इज स्टेटमेंट क्लियर तो सेति पे सेकंड स्टेटमेंट अपन भूल होबो इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक लॉन्च करछि कि नो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री राइट
सो आपण मेंशन आपण कर दियंतु मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरी राइट मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरी को आपण जेतु करूची एनिमल हस्बेंडरी मिनिस्ट्री एंड डायरी मिनिस्ट्री जोटा आपण करूची मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरी ताको कहा जाय सो ताको लॉन्च अपन करूची नॉट ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तेन तीन मध्ये अपन रॉन्ग तो आंसर कोन हबो हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर होचे ओनली वन जदि किछि भी डाउट कहार ताले पचारंतु नेशनल लाइवस्टॉक मिशन हमरो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरिंग अपन को करूची फाइन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरिंग अपन को करूची सो एको आपनकर कैटल ऊपर एक्सक्लूसिवली आपनकर रखा होची कैटल बफालो ता सहित स्मॉल रुमिनेंट्स मध्ये इंक्लूड अपन रहउची सो पोल्ट्री प्रोडक्शंस रे जेमति कि हमर सीप हला गोट्स हला देन आपनकर कैमल हला राइट याक हला ये समस्त इंक्लूड अपन रहउचंती सो ई स्टेटमेंट आपनकर भूल हबो इन एक्सक्लूड्स नो इंक्लूड्स अपन हबो एंकर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोडक्शंस को इंप्रूव अपन करिया पई ए मिशंस रो मेन एम ओके let's go to next question the global cyber security outlook 2025 report is published by all of you please try to answer समस्त आंसर करियो ट्राई करंतु एबे साउंड इश्यूज ठीक अछि साउंड इश्यूज एबे ठीक अछि तो am I audible so देखो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 तो दिस इज पब्लिश्ड बाय द करेक्ट आंसर होछि आपनकर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन फाइन सो ITU आपनकर करेक्ट आंसर आपन हबो तो ये कोन करूछि ना ये साधारणतः हमर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को तो हमर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपन अछि फाइन सो हमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपन अछि सो सेते आपनकर कोन कोन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आपनकर आसी पारे इन अपकमिंग इयर्स सो ताको एनालिसिस करिवार काम होछि आपनकर ई इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन रो ऑल क्लियर ओके फाइन साउंड ठीक अछि तो ठीक अछि सो ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन कौन करे ना प्रत्येक वर्ष सो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आपनकर रिलीज करे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आपन रिलीज करे सो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 ये होचे ओटे आपनकर रिपोर्ट ओके सो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी होचे आपनकर इंडेक्स जाको से रिलीज करे सो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रे कोन हुए ना हमर जो साइबर सिक्योरिटी जो ट्रेंड रहिछि जोटे कि हमर सोसाइटीज बा इकोनॉमी को अफेक्ट करि पारे ए प्रत्येक वर्ष ओके सब जो 2025 रे भाबि नंतु कोन कोन थ्रेट्स अछि कोन कोन इश्यूज अपन अछि फाइन को साइबर सिक्योरिटी इश्यूज कोन रहउछि सो जोटा कि हमर इकोनॉमी को बा सोसाइटी को अफेक्ट अपन करि पारे आमर इकोनॉमी बा सोसाइटी को जोटा कि अफेक्ट अपन करि पारे तो से कंप्लीट रिपोर्ट अपन पब्लिश अपन करे इंटर टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ऑल क्लियर तो साधारणतः हमर जो कॉम्प्लेक्सिटी रहिछि साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप रे जहाँ भी कॉम्प्लेक्सिटी रहिछि बा जियोपॉलिटिकल टेंशन जहाँ सब रहिछि बा भाबिनंतु किछि रिसेंट ईयर रे किछि एमती इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बाहरिछि जोटा कि किछि एमती इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अपन बाहरिछि जोटा कि थ्रेट अपन फाइन साइबर सिक्योरिटी पई जोटा कि अपन थ्रेट अपन तो से सब जिंस को से हाईलाइट अपन करिवो सो दैट वी कैन टेक नेसेसरी एक्शंस फाइन सो हमर जो सप्लाई चेन इंटरडिपेंडेंसीज रही साइबर क्राइम्स अपन हला ये सब को अपन एनालिसिस अपन करिकि ITU कोन करे ना ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट अपन पब्लिश करे सो एठी ए मोर करेक्ट आंसर हे जिवो क्लियर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट आकाश तीर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इट इज प्राइमरली एम्ड एट आंसर करंतु फाइन
So correct answer होची आपनकर प्रोजेक्ट आकाश तीर आपनकर कोन. So it is recently seen in the news. It is primarily aimed at automating air defense control and reporting process. So it B मोर एठी correct answer आपनकर हे जिवो. So आमर प्रोजेक्ट आकाश तीर आपन जदी कहिबा, so it is a project of तो कहार ए प्रोजेक्ट तो करेक्ट आंसर होची आपनकर इंडियन आर्मी. लिखि देंतु खाता रे ये क्वेश्चंस मध्ये आपनकर पचारि पारे. So इंडियन आर्मी द्वारा ये गोटे इन्वेंशन, ये गोटे इनिशिएटिव आपनकर निया जायछि. ओके, सो इंडियन आर्मी द्वारा जहाँ द्वारा कि आम एयर डिफेन्स कैपेबिलिटीज को इंप्रूव आपन करुचे थ्रू दिस ऑटोमेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी. फाइन. सो ऑटोमेशन एवं एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमेशन एवं एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा इंडियन आर्मी सो एको आपन एयर डिफेन्स कंट्रोल को ऑटोमेटाइज करिया पई एवं रिपोर्टिंग प्रोसेस केमते ऑटोमेटेशन आपन हबो. सो थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी आमे ए गोटे मेजर प्रोजेक्ट को आपन अंडरटेक आपन करछे. सो जहा जोटा कि इंडियन आर्मी आपन को करछे जहा ना होचे प्रोजेक्ट आकाश तीर. सो बेसिकली हमर जो एयर डिफेन्स नेटवर्क आपन रहिछि ए एयर डिफेन्स नेटवर्क को स्ट्रेंथन आपन को करिया पई. फाइन. ए एयर डिफेन्स नेटवर्क को स्ट्रेंथन अपन करिया पई सो दैट ऑटोमेटिकली जदी किछि भी भाबि नंतु किछि स्पाई अपन का आसुची बा किछि एम्ति माने किछि भी हमर माने ड्रोन्स अपन का आसुची तो से कोन करिवो ना हमर वेरियस डिफेन्स एयर डिफेन्स रे एयर रे वेरियस हमर डिफेन्स सेंसर्स हमें डिप्लॉय अपन को करिचे. डिफेन्स सेंसर्स कोन करिवो ना ताको डिटेक्ट अपन करिवो, तार पिक्चर नबो एवं ताको रिपोर्ट अपन को करिवो. बुझि परछन ऑटोमेटिकली. सो ऑटोमेटिकली एयर डिफेन्स को हमें कंट्रोल करिवो को इथरे चेष्टा अपन करछे. तो हमर जो एयर को हमर जो डिफेन्स सिस्टम्स रे आमे कंप्लीटली ताको कंट्रोल अपन को करूचे, ऑटोमेटिकली कंट्रोल अपन करूचे. सो दैट जति किछि भी अपन माने किछि थ्रेट्स अपन आसिला. ओके, सो ताको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट अपन करिवो. सो तार पिक्चर अपन नबो एवं ताको रिपोर्ट अपन कर दबो. सो दैट आमे अलर्ट अपन हे परबा एंड वी कैन टेक नेसेसरी एक्शंस. ऑल क्लियर. बुझि परछन कि. सो कंप्लीट कंट्रोल अपन होची. सो दिस इज नोन एज योर प्रोजेक्ट आकाश तीर. सो आकाश रे जदी अपन किछि भी अपन माने थ्रेट्स अपन आसिला ताको कंप्लीटली डिटेक्ट अपन करिवो ऑटोमेटिकली एंड ताको रिपोर्ट मध्ये अपन करिवो. सो दैट इज द मेन एम. बुझियाला समझते. आई होप क्लियर. बी होच अपन करेक्ट आंसर. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. छोटा बेले आपण माने पढिथिबे इन केमिस्ट्री द ऑक्टेट रूल. इट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन. सबु देखुचन त मु सबु क्वेश्चंस को इंक्लूड अपन करिछि. एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हां. सो अपन एग्रीकल्चर देन अपन करंट अफेयर्स सबु जिंस को हम इंक्लूड अपन करूचे. सो दैट होलिस्टिकली गोटे अपन रिवीजन अपन हे जिवो. इट्स इजी क्वेश्चन समस्त अपन को कहतु. सो सबु एलिमेंट्स गुडी जदि हमें देखिबा सबु एलिमेंट्स कर गोटे टेंडेंसी अपन होची. सो दे टेंड्स टू गेट स्टेबल लाइक योर नोबेल गैस, राइट. सो नोबेल गैस जमते अपन सो जार फुल ऑक्टेट अपन थाए, जार जो सेल गुडी को जतले अपन फुल थाए अपन जानछथि पढिछन के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, राइट. सो 2888 तो जो अपन 8टा इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल्स रे अपन फुल हेले जो तरे कि इलेक्ट्रॉन्स जो तरे कि अपन एलिमेंट्स स्टेबल अपन हबो. सो ताकू हमें अचीव करिया पई सब बेले एलिमेंट चेष्टा करबा एंड एको ही ए जो 8 को अचीव करे चेष्टा करे एको ही हमें ऑक्टेट रूल अपन को कहू. ऑल क्लियर और नॉट? ठीक तो. सो आइदर कौन हुए ना एलिमेंट्स यही ऑक्टेट रूल यही स्टेबिलिटी को अचीव करिया पई आइदर से कौन करिवो ना आइदर इलेक्ट्रॉन्स गेन करिवो नहले इलेक्ट्रॉन्स लूज करिवो. ठीक. आइदर से इलेक्ट्रॉन्स गेन करिवो नहले से इलेक्ट्रॉन्स लूज करिवो. जदी तार आउटर सेल्स रे जदी तार आउटर सेल भाबिनंतु अपन 7टा अछि. ओके, सो 7टा अछि 1 2 3 4 5 6. सो ताले से कोन करिवो ना दीटा इलेक्ट्रॉन्स से कोन करिवो ना गेन करिवो. ठीक. जदि भाबिनंतु ता पाखरे गोटे अपन रछि आउटर सेल रे तार भाबिनंतु तार गोटे इलेक्ट्रॉन्स अछि ताले सेठी से कोन करिवो ना लूज करिवो. जेमति कि अपन क्लोरीन अपन हला, फ्लोरीन अपन हला. ठीक ना नहीं? आर यू गाइस गेटिंग मी? मो कथा समस्त बुझी परछंती. तो साधारणतः सबु एलिमेंट्स गुडी को नोबेल गैस टेंडेंसी को अचीव करे को समस्त चेष्टा अपन करंती. तो से माने जो आउटर सेल्स रे जो इलेक्ट्रॉन्स गुडी को थिबा आइदर से माने गेन करिवे नले लूज करिवे. सो इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट टू गेट स्टेबिलिटी, राइट. सो सेति पई कि सी हमर एठे करेक्ट आंसर अपन हबो. ठीक ना नहीं? सो ऑक्टेट रूल्स रे सबु एलिमेंट्स गुडी को स्टेबल होबा को चेष्टा अपन करंती. सो इट विल ईदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स सो दैट समानकर आउटर सेल्स टा फुल हबो. सो दे कैन हैव ए फुल out other cells of 8 electrons. So ये जो 8 electrons को जो अचीव करने की चेष्टा करन सेति में तार ना होचे पंगर ऑक्टेट रूल. So most of the elements they try to get stable to their nearest noble gas. So जो noble gas तांका पाखरे अपन थिबो तो ता सहित से माने स्टेबिलिटी अपन हवा पई से माने चेष्टा अपन को करंती. ठीक अछि? क्लियर?
Yes, let's go to next question. How does sunscreen protect your skin from the sun? ओके फाइन सो यहाँ समस्त बहुत इंटरेस्टिंग सो झील मान बेसी इंटरेस्टिंग ओके सो पुओ मैंने जदिव समस्त जानती कि किसी करती यूजुअली से सनस्क्रीन व्यवहार करती बट आम टे भल से बुझी ना सो सनस्क्रीन कौन आप एडभांटेज रही कौन कम आप रही सो डायरेक्टली आम डिस्कसन करवा तो फास्ट अफ अल आमर कौन होची आमर जो सन रो जो यूवी रेज आप आसे सन रो जो यूवी रेज गुड़िक आप आसूची जो से स्किन आम पड़ुची डायरेक्टली तो आमर कौन स्किन होची ना स्किन आप टैन आप होची एवं स्किन डायरेक्टली यूवी रेजटा जो सन रो यूवी रेजटा जो स्किन उपर पड़ुची डायरेक्टली ताले आमर कौन हुए ना आप प्री मैच्योर एजिंग आप हो जाए अरे कौन टे मेंटेन करूनु तो कहते अरे भाई तार एज देखीचु सो तार एज रे तो कहीपर तार बयस ये बोली कि ना सी पूरा मेंटेन करके रही कहते कि नहीं आप सो कौन हुए बेसिकली ना किसी लोकंर प्री मैच्योर एजिंग आप हो जाए माने से बयस तुलन में अधिका बुढ़ा बा बुढ़ी से देखा जाती सो जदि स्किन उपर डायरेक्टली यूवी रेज आप पड़ा ताले आम प्री मैच्योर एजिंग हो पाए स्किन कैंसर आप पारे क्लीयर स्किन कैंसर आप पारे स्किन टैन आप पारे वेरियस एलर्जी रिएक्शंस आप पारे राइट वेरियस एलर्जी रिएक्शंस आप स्किन रे हो पारे स्किन आपंकर आमर सनबर्न आप पारे तो प्राइमरी आप देखिए स्किन गुड़िक आप जला पोड़ा भाया सनबर्न हो पारे फाइन तो दीज आर सम ऑफ द माने कॉन्सिक्वेंसेस जदि आपंकर जदि आप स्किन उपर डायरेक्टली सन कर यूवी रेज आप पड़ा ऑल क्लियर ये हूँ आप कज अच्छा एक प्रिवेंट करने कौन करुचे ना आम सनस्क्रीन लोशन आप व्यवहार आप करुचे ठीक तो सो आम कौन करुचे ना आप सनस्क्रीन लोशन आप व्यवहार आप करुचे तो आप वेरियस सब आप हिरोइन मैंने जो एडवर्टाइज कर टेम्पटेशन है कि सो आम भी भावुचे आम सेमती गोरा हो तो आम कौन करुचे ना सनस्क्रीन लोशन आप व्यवहार करुचे तो यार मुख्य उद्देश्य आप कौन ना आप जो सूर्य खरा को बाहर सो आपंकर जो खरा को बाहर तो से कौन थाए एक्चुअली मुझे कहीदे टेक्निकल टिके नाकू तो सनस्क्रीन आमर कि यूवी कि केमिकल कंपाउंड्स आप थाए फाइन ये सनस्क्रीन कौन ना किसी गोटे केमिकल लोशन सो बेसिकली जो केमिकल लोशन्स आप रहा केमिकल कंपाउंड आप रहा ए कौन थाए ना यूवी फिल्टर्स आप थाए क्लीयर एथरे कौन थाए ना यूवी फिल्टर्स आप थाए तो जितेबाला सूर्य किरण डायरेक्टली आपंकर जो सनस्क्रीन लोशन उपर आप पड़ो जहाँ को अप्लाई करेंगे निज स्किन रे तो से एमती डिजाइन होता है जे से यूवी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब आपको करदेव सो इट विल एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशंस क्लियर सो ये कौन कर ना यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब आप करदेव किए से ना ये जो केमिकल कंपाउंड बा यूवी फिल्टर जहाँ को आम व्यवहार आप करुचे जोटा कि स्किन उपर अप्लाई आप करथिबा तो ये कंपाउंड्स गुडी को यूवी रेज को एब्जॉर्ब आप करदेव एंड ताको ट्रांसफॉर्म आप करदेव टू द हार्मलेस हीट जो हार्मलेस हीटा आम बॉडी रू आपंकर रिमूव हो जाए थ्रू योर स्वेट एंड ऑल से हार्मलेस हीटा जो हीटा आम बॉडी पे हार्मफुल अपन नुहे से एनर्जीटा हीट एनर्जीटा एब्जॉर्ब अपन होइकी सो सेटा स्किन रू परवर्ती अवस्था रे इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्किन क्लियर बुझी पाले कि समझते कौन कहले बुझीपारे कि तो बेसिकली सनस्क्रीन आम कौन करुचे ना किसी केमिकल कंपाउंड्स व्यवहार अपन करुचे सो जहाँ को आम यूवी फिल्टर्स बोलिकी कहे तो ये कौन करे ना यूवी रेज को फिल्टर कर दूची दैट मीन्स आमर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब अपन करुचे ये जो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब अपन करदेला एंड ताकू से कन्वर्ट अपन करदेला टू द हार्मलेस हीट जो हीटा आम स्किन पे आपंकर क्षतिकारक नुह एवं ताकू आम स्किन द्वारा ताकू आम रिलीज अपन कर दूचे समस्त बुझीपारे कि ऑल क्लियर तो आम ये कौन पड़े ना यूवी एब्जॉर्प्शन अपन होगला आम बॉडी रे फाइन आउरी बहुत गुड़े आपंकर सनस्क्रीन आपंक आसे तो से कौन करती ना जो से लोशन्स को व्यवहार आप करेंगे ये हूँ आप आउ गोटे टेक्निक आपको कहूँ जो आम सनस्क्रीन को व्यवहार आप करुचे तो से कौन हम
सो जिते से लोशन्स को आप व्यवहार करेंगे जिते से लोशन्स को आप अप्लाई करेंगे तो सी कौन कर ना टोटाली यूवी रेज को ये स्कैटर आप करदेव ये ऑब्जर्व आप करूला ये कौन कर ना यूवी रेज को कम्प्लीटली सो किसी केमिकल कंपाउंड्स व्यवहार आप कराए सी कौन कर ना यूवी रेज को कम्प्लीटली स्कैटर करदेव तो जहाँ भी आमर यूवी रेज आप स्किन रे पड़ा तो सी कम्प्लीटली खेले हो फाइन तो सी स्कैटर आप एंड से कौन हुए ना किछिटा फिजिकल ब्लॉकर्स आप यूजुअली थाए फिजिकल ब्लॉकर्स आप जमती कि जिंक ऑक्साइड्स आप कहीपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड आप कहीपर ओके जिंक ऑक्साइड है टाइटेनियम डाइऑक्साइड आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स आप तो एगुड़िक को कौन कहुए ना एगुड़िक को फिजिकल ब्लॉकर्स आम कहू तो ये जो सनस्क्रीन्स आप अप्लाई करते जो केमिकल कंपाउंड्स आप रहा जो जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स आप रहा तो दीज आर योर फिजिकल ब्लॉकर्स तो फिजिकल ब्लॉकर माने सर कौन ना जितेबाला मिनराल्स गुड़िक जो मिनराल्स गुड़िक जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड है एगुड़िक कंप्लीट गोटे फिजिकल बैरियर भाव में स्किन सरफेस उपर काम कर ऑल क्लियर बुझीपार कि सो दैट जितेबाला भी आप स्किन रे यूवी रेज गुड़िक आप पड़ो तो सी कौन कर ना आप स्किन को पशिबा सी दब ना बिकज इट विल एक्ट एज एन बैरियर गोटे ब्लॉक भाया काम कर क्या भितर ना स्किन भितर एवं आप सन भितर तो ये गोटे फिजिकल ब्लॉकर बा बैरियर भाव में काम कर आपंकर हिटा को जो यूवी हिट रहा जोटा सनबर्न करता जो यूवी रेज रहा ओके तो सीटा आप स्किन को पेनिट्रेट न करिक डैमेज न करिक तो सी प्रिभेंट आप इट विल एक्ट एज एन ब्लॉकर्स समस्त बुझीपारे कि फिजिकल ब्लॉकर भाव में काम करिवो सो एथरे कौन है ना आमे एठी सनस्क्रीन रे सेठी आपन हीटा ऑब्जर्व होतला तो एठी कौन है ना यूवी रेसटा स्कैटर हो गला ओके फाइन सो ये आपन यूवी रेस यूवी आम स्किन टाको कंप्लीटली ये प्रोटेक्ट आपन करिला एंड आपन डैमेज रु ये प्रोटेक्ट करला बिकॉज़ स्किन भितर को कौन से हीट पेनिट्रेट हे परिबो नाही बुझियला ऑल क्लियर सो ये कंप्लीट प्रोसेस मु आपन को कहली दीटा टेक्निक्स आपन को कहली सो वेरियस टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स मार्केट रे आपन आसे सो कोटा आपन यूवी फिल्टर ऑब्जर्वेशंस करे कोटा आपन स्कैटर कर दिए फाइन कोटा यूवी रेस को आपन ऑब्जर्व करके सी आपन कन्वर्ट कर दबो टू हार्मलेस हीट एल्स आपन से स्कैटर कर दबो गोटे फिजिकल बैरियर भाबरे काम करियो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड बुझियला सो ये ताहले आपन करेक्ट आंसर कोन हबो आपन माने मते कहंतु करेक्ट आंसर कोन हबो बाय इंक्रीजिंग पर्सपिरेशन ऑब्जर्विंग एंड स्कैटरिंग यूवी रेस ऑब्जर्विंग कथा भी कहली स्कैटरिंग कथा भी कहली तो करेक्ट आंसर कोन हबो बी मोर एठी करेक्ट आंसर हि जिवो ऑल क्लियर बुझी पाले सो आज ठू आपन सनस्क्रीन आपन लगेबा स्टार्ट करिवे ताहले ठीक अछि ठीक अच्छे तो सनस्क्रीन हाँ सो जोटा कि आपंकर प्रीति जिंटा एंड कैटरीना कैफ जो कथा आप कही पार से केवल देखे कि बुझाऊँ सनस्क्रीन व्यवहार करने दरकार सो मुझे टेक्निकली बुझेवा को चेष्टा अपन कली एंड आई होप जो मैंने आप मोटिवेट होते आप समस्त सनस्क्रीन व्यवहार करने स्टार्ट करदे ठीक तो ऑल क्लियर सो जोक्स अपार्ट लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन जदि किसी डाउट अच्छी मत कहे फाइन लेट है किसी नो इश्यूज आप देखने चेक करने रिकॉर्डिंग चेक करने फाइन सो एगुड़िक साधारणतः आपको कौन से गुड़ी कौन ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट्स बेसिकली एगुड़ी कौन नेचुरल ग्रोथ हार्मोन्स आपंकर जोटा कि प्लांट्स रे आपको देखा मिले तो से आपंकर ऑक्सिन्स आप हो गिबरलिन आप हो साइटोकिनिन्स हो इथिलिन हो आपंकर एब्सिसिक एसिड आपंकर हो ठीक तो सो एब्सिसिक एसिड आपंकर हो सो दीज 5 आर योर ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट इज योर नेचुरली सो आम जब देखा आमर नेचुरल ग्रोथ हार्मोन्स गुड़िक जो रही प्लांट्स रे ताको 5टा क्लास रे ताको डिवाइड करू सो ऑक्सिन्स गिबरलिन साइटोकिनिन्स इथिलिन एंड योर एब्सिसिक एसिड राइट आमर एब्सिसिक एसिड ABSCI एब्सिसिक
एब्सिसिक एसिड ओके क्लियर सो ये पांचटा हूँ आम ग्रोथ हार्मोन जहाँ विषय आम छोट बेल आप पढ़ी पढ़ी आसीचे सो आम गोटे गोटे आप फंक्शंस आप देखा तो साधारणतः फास्ट ऑफ ऑल आम ऑक्सीजन आप देखा तो ऑक्सीजन हूँ आप ग्रोथ प्रमोटर तो ये कौन करे ना ऑक्सीजन ग्रोथ को प्रमोट आप करे सो केमिति ना आमर सेल एलोंगेशन आप करे राइट सो साधारणतः आमर ऑक्सीजन आप ग्रोथ को प्रमोट आप करे तो तार जो एपेक्स आप थाए जो स्टेम आप रूट्स आप ग्रो कर साहाय्य करे राइट सो ग्रोथ ऑफ योर जो तार प्लांट टिप्स आप फाइन सो आप ये आमर रूट्स आप कहतु स्टेम आप कहतु तो ये सब को ग्रो करिवारे आमर साहाय्य आप करिवो ठीक अच्छे सो आमर रूट्स को सेल एलोंगेशंस रे आपनकर सेल एलोंगेशंस रे माने भाबिनंतु आपनकर रूट टिप्स आपनकला बा सूट आपनकला ताको ये एलोंगेशंस रे ताको ये सहाय्य करिवो ठीक अच्छे आउ कोन करिवो जदि भाविनतु कौन गोटे गचर टीप को आप काटिदेले सो तापर भी जो लैटरल ब्रांच आप सो से लैटरल गोटे गचर गोटे ब्रांच को काटिदेले तथापि से आप लैटरली सो ग्रोथ गचर आप डेभलप आप हम तापर भी आप ग्रोथ आप कंटिन्यू आप हम सो ड्यू टू दिस ऑक्सीजन हार्मोन्स राइट सो दैट मीन्स आप ऑक्सीजन कौन करुच्ची ना आमको आमर जो लैटरल बॉर्ड्स को डेभलप करिवारे सो साहाय्य आपन करूची एंड लैटरल ब्रांचेस ग्रो होची सो ताको हमें एपिकल डोमिनेंस आपन को एवं कौन करे ना आमर जो लीफ फॉल्स आपन हुए जो गचर जो पत्र झड़ा आपन हुए सो ये गछ पत्र झड़ा को ये डिले आपन करे फाइन सो इट डिलेज द फॉल ऑफ लीव्स जा को हमें साधारण साइंटिफिक भाषा ताको हमें लीफ एब्सिसिशन आपन को कहा जाए ताको कहा जाए लीफ एब्सिसिशन फाइन सो जो कि डिले ऑफ लीव्स जो कि डिले इन लीफ फॉल्स अपन हुए सो गचर साधारणतः आपंकर जो पत्र झड़े से पत्र झड़े को डिले अपन करे बिकॉज इट माने इट प्रमोट्स ग्रोथ फाइन ये ग्रोथ प्रमोटर से अपन कहा जाए सो डिले इन लीफ फॉल इज योर करेक्ट वन तो ये ए अपन करेक्ट अपन अच्छे तापर आप देखो गिबरलिन सो तापर देखो गिबरलिन एको गिबरलिन एसिड साधारणतः अपन कहा जाए तो प्लांट्स रे साधारणतः आमर जो एम्ब्रियो रहिला रूट्स रहिला फाइन लीव्स रहिला तो एठी आपनको गिबरलिन आपनकर प्रोडक्शंस आपनको देखा जिवो सो यार काम आपनकर कोन ना साधारणतः जो आपनकर ड्वार्फ प्लांट्स आपन थाए जो गछर हाइट आपनकर छोटो थाए सो से जो ड्वार्फ प्लांट्स रे आपनकर एलोंगेशंस रे एई गिबरलिन आपनको सहाय्य करे ऑल क्लियर सो आमर गिबरलिन्स प्राइमरली आमर जो सीड बा बर्ड्स रो जो डॉर्मेंसी स्टेज आपनकर थाए जो सीड्स हला बर्ड्स हला तार जो डॉर्मेंसी स्टेज आपनकर थाए फाइन जो डॉर्मेंट हो जाए ताको हमें डॉर्मेंसी स्टेज अपन को से डॉर्मेंसी स्टेज को ब्रेक करिया पई ए गिबरलिन्स हमको सहाय्य करे सो साधारणतः जो ड्वार्फ प्लांट्स अपन थाए जो सब गुडी को गेडा गछ अपन कोंती छोटो गछ अपन कोंती सो ड्वार्फ प्लांट जार हाइट फाइट बढ़े नाही सो ताको अपन को ब्रेक करी किनी तो ताको एलोंगेशंस रे स्टेम एलोंगेशंस रे सहाय्य करे दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तणो इठी अपन गिबरलिन होची स्टेम एलोंगेशंस मध्ये अपन करेक्ट आंसर अपन अछि सो डॉर्मेंसी को ब्रेक करिबारे एवं हमर ड्वार्फ प्लांट्स रो स्टेम को एलोंगेट अपन करिबारे सो तार हाइट बढ़ाइबारे ता हाइट को इंक्रीज करिबारे ये सहाय्य करे ऑल क्लियर समस्त बुझी पाले कि साधारणतः एटा एम्ब्रियो रूट्स यंग लीव्स एठी आपनकर देखा जाए बुझी पाले समस्त फाइन तापर आपन देखंतो साइटोकिनिन्स तापर देखंतो आपनकर साइटोकिनिन्स सो साइटोकिनिन्स ता तो साइटोकिनिन्स आपन कोन काम करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटी देछि आपन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स पई को केस रिस्पांसिबल के कहि परबी कि आपन भितरो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स पई आपन केस रिस्पांसिबल इट्स नॉट योर साइटोकिनिन्स एटा भूल अछि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होछि आपन केस इथिलिन आपन करे फाइन सो इथिलिन होछि आपन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आपन करे सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होछि आपन इथिलिन आपन करे इथिलिन इज बेसिकली अगेन इट्स ए नेचुरल बेस्ड हार्मोन जोरे कि आपनकर फल को पाचै बारे आपनकर सहाय्य करे सो इथिलिन होची एटा हमर साधारणतः जो फ्लावर्स हला लीव्स हला तो सेथरे फ्रूट्स को राइपेन करिबारे बा आपनकर जो हमर माने गछर विड्थ रा इंक्रीज अपन करिबारे मोटापा ओके गछर विड्थ रा इंक्रीज अपन करिबारे तो ये इथिलिन होची आपनकर सहायक हाइट नुह हाइट होची आपनकर कोटा आपनकर होची कहली गिबरलिन्स जो ड्वार्फ प्लांट थिबो माने जहार साइज छोटो थिबो तार लेंथ वाइज इंक्रीज अपन करिबारे सो लेंथ वाइज इंक्रीज अपन करिबारे तो ये गिबरलिन्स होची सहायक किंतु जदि हम देखिबा इथिलिन होची रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन विड्थ ए सब टेक्निकल टर्म्स अपन मन रखंतु जोथरे कि आंसर अपन करि परिबे इथिलिन ता होची आपनकर विड्थ गछर विड्थ रा आपनकर बढ़ाइबो नॉट योर हाइट ऑल क्लियर बुझी परछन समस्ते तापर देखंतु साइटोकिनिन्स कोन करे ना हमर
एजिंग को प्रिवेंट अपन करे क्रॉस अपन हेज इट हेल्प्स इन योर प्रिवेंशन ऑफ योर एजिंग फाइन सो आमर जो पढ़ुले आम जस्ट टिके पूर्व मुझे कहती सनस्क्रीन्स कथा तो साधारणतः साइटोकिन्स गुड़िक कौन हुए ना आम यंग फ्रुट्स रे सेल डिविजन्सटा कंटिन्यूअसली आपंकर चले सो आपंकर सीड आपन कहतु बा यंग फ्रुट्स आपन को जो कि सेल डिविजनटा कंटिन्यूअसली चले सो से कौन हुए ना सेल डिविजन्स बा सेल एनलार्जमेंट सेल डिफरेंशिएशन ये सब पाई आमर ये साइटोकिन्स होची रेस्पोंसिबल क्लियर ए साइटोकिन्स होची आपंकर देखिबे क्वेश्चंस आपन पचारि थाए सो सेल डिविजन्स आपन हला सेल एनलार्जमेंट है सेल डिफरेंशिएशन ला तो ये सब पाई होची आपनकर ए साइटोकिन्स होची रेस्पोंसिबल तो ये कौन करे ना प्लांट पार्ट्स रो जो एजिंग को ये प्रिवेंट आपन को करे तो ये अगेन आमर जो लैटरल बॉड्स आपन हला जो आपनकर माने आमर जो कौन से गच को आम काटिदे साइड रे अगेन जो लैटरल बॉड जो डेवलपमेंट होची जो एपिकल डोमिनेंस हमें कहूचे तो से साइटोकिन्स रेस्पोंसिबल एवं साइटोकिन्स सेल डिविजन्स को रेगुलेट करे मैनेज करे एंड ये एजिंग को प्रिवेंट आपन करे सो एठी आपन दीटा जाक उल्टा आपन हो तो तेणु 3 and 4 होची इनकरेक्ट क्लियर तो हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स हैव आर करेक्टली मैच करेक्ट आपन पचारिथिला तो आंसर होची आपन ओनली 2 बुझी पाले ना कार किसी डाउट क्लियर समस्ते बुझी पाले कि तापर लास्ट वन होचे आपन एब्सिसिक एसिड जोरा कि आपन को कहउथली तो एब्सिसिक एसिड आपन को कोन करबो ना इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ योर गिबरलिंस ये होचे आपन ऑपोजिट टू दैट ऑफ योर गिबरलिंस तो गिबरलिंस आपन कोन करथला ना डोरमेंसी को ब्रेक आपन करथला तो ये कोन करबो ना इट विल एनकरेज डोरमेंसी क्लियर ये डोरमेंसी स्टेज को आनिबा को चेष्टा अपन करिवो सो आमे कोन पढुतले ना फॉल ऑफ लीव्स को डिले करथला किए से ऑक्सिन तो ऑक्सिन ये फॉल ऑफ लीव्स को डिले करथला बट या सकासे अपन कोन हबो ना लीफ आपनकर लीफ फॉल होबा स्टार्ट करिवो तो जो गछरे लीफ फॉल हुए दैट इज ड्यू टू योर एब्सिसिक एसिड ऑल क्लियर गछरे लीफ फॉल होबा डोरमेंसी स्टेज को अचीव करिबा फाइन तो ये सब होचे आपनकर एब्सिसिक एसिड रो काम सो एब्सिसिक होचे आपनकर ग्रोथ इनहिबिटर ता माने हमें कहिबा सो एब्सिसिक एसिड ग्रोथ प्रमोट करेनी ये ग्रोथ को इनहिबिट आपन करे सो ये ग्रोथ होबा को दिए नहीं फाइन जो पत्र झड़ा आपनकर दिए सो ये कोथि पई हुए ये होचे एब्सिसिक एसिड पई आपनकर हुए बुझी पले कि समझते क्लियर तो सीड जर्मिनेशन सब तो रोकबो सीड जर्मिनेशन डेवलपमेंट हम ना ड्यू टू योर डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स जोटा कि गिबरलिन ताको माने एनकरेज करे ये ताको आपनकर रेस्ट्रिक्ट आपनकर करिवो फाइन स्टोमाटा आपनकर क्लोज आपनकर हुए ड्यू टू योर एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा होची पोर्स आपन जानचंती तो स्टोमाटा क्लोज आपन हुए ड्यू टू दिस एब्सिसिक एसिड क्लियर बुझी परछंती तो दीज आर योर सम इन शॉर्ट हमें डिस्कशन अपन कर देले ऑल दीज आर योर ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट्स सो जो गुडी कि नेचुरली आपन देखिया को मिले एटा होची पांचटा वे रे हम तो क्लासिफिकेशन अपन करूचे एंड सब विषय में ठीक डिस्कशन अपन सहित कर देली आई होप दिस इज क्लियर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन फाइन आउ टाइम नहीं मो पाखे मत क्लास ए सारे को पड़ो फाइन सो आम शीघ्र शीघ्र टी करदे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रेकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट्स बैंक इन इंडिया सो इंडिया पेमेंट बैंक को आपंकर को कमिटी रेगुलेट आपन करूची तो जदि आपण माने समस्त जानिथिबे हमर आरबीआई गोटे कमिटी आपनकर एस्टैब्लिशमेंट आपन करथला इन 2013 सो दैट इज कॉल्ड एज योर नचिकेत मोर कमिटी तो ए एठी मोर करेक्ट आंसर हिजिबो सो नचिकेत मोर कमिटी इज द कमिटी दैट रेकमेंड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इन इंडिया सो आपण जानचंती वी हैव वेरियस पेमेंट्स बैंक राइट सो हमर जो लो इनकम हाउस होल्ड्स अपन रहले बा स्मॉल बिजनेसमैन रहले तांको बैंकिंग सर्विस बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड अपन करिया पई सो वी हैव डिफरेंट पेमेंट बैंक्स राइट सो एयरटेल पेमेंट बैंक राइट सो अपन पेटीएम अपन हला सो लाइक दिस जो पेमेंट बैंक्स को रेगुलेट अपन करिया पई तार एस्टैब्लिशमेंट पई आरबीआई गोटे 2013 रे कमिटी अपन करिथिला अंडर योर नचिकेत मोर सो ताको अपन मन रखिबे तापर देखंतु ऑपरेशन कवच इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू कम्बाट द मेनेंस ऑफ ड्रग्स सो साधारणतः हमर जो ड्रग्स अपंकर ड्रग्स सकासे जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो अपंकर इंक्रीज अपंकर होची सो सेति पई कि दिल्ली पुलिस गोटे अपंकर इनिशिएटिव नैथिला शीघ्र शीघ्र कहि दोछि आपण आंसर भी दे चलंतु सो दिल्ली पुलिस गोटे इनिशिएटिव अपन नैथिला ई ड्रग्स को केमते कंट्रोल अपन को करा जिवो सो फॉर दैट रीजंस सो हमर ड्रग अब्यूज बा ड्रग ट्रैफिकिंग जो हमर होतला सो सेई केस को रेगुलेट अपन करिया पई बा ताको कंट्रोल अपन करिया पई दिल्ली पुलिस ओके सो दिल्ली पुलिस द्वारा जो इनिशिएटिव नैथिला इंडियन आर्म फोर्स सो इंडियन आर्म फोर्स मध्ये सेते अपन सहायक अपन हेतला तो साधारणतः हमर जो इंडिया रो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट सब रहिला
सो हमर जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट अपन रहला एलएसी रहला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रहला तो सेठी केमते अपन जो ड्रग्स जो माने ये होची ओके सो ड्रग्स जो अपन माने जो ऑपरेशंस कैरी आउट अपन होची ताको केमते रेस्ट्रिक्ट अपन को करा जिवो सो फॉर दैट रीजंस ए ऑपरेशन कवच अपन लॉन्च अपन कराइतला सो ऑपरेशन कवच इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट अपन को पचार जी तो करेक्ट आंसर होची अपन न्यू दिल्ली तो बी मोर एठी करेक्ट आंसर हे जिवो अपार्ट फ्रॉम इट हमर इंडियन एयर हमर जो इंडियन आर्मी रहिला इंडियन आर्म फोर्स रहिला तो सी मध्ये ताको अपन सहयोग अपन को करिछि तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया तो इंडिया रे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करिया पई को पोर्टल अपन लॉन्च अपन कराई छै तो समस्त अपन माने या विषय जानि थिबे तो हमर जो CGWA रहिला सेंट्रल ग्राउंड वाटर वे अथॉरिटी हमर जो रहिला तो ये CGWA अथॉरिटी रो इनिशिएटिव रे सो यार सहाय्य रे सो आमे रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्टर हमर ए पोर्टल को लॉन्च अपन करथिले जहार प्राइमरी एम होची केमते ग्राउंड वाटर को मैनेज अपन करे जिवो एवं यार ना होची अपन भू नीर ओके सो भू नीर ग्राउंड वाटर को मैनेज करिया पई सो ये गोटे इनिशिएटिव गोटे पोर्टल गोटे अपन लॉन्च अपन कराई छी सो बाय योर CGWA एवं ता सहित NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स मध्ये ता सहित अपन माने माने तांकर उद्यम रे दी जनकर उद्यम रे से माने कोलैबोरेटिवली तो ये पोर्टल को लॉन्च अपन करचंती यार प्राइमरी काम अपन कोन ना हमर ग्राउंड वाटर जो यूसेज को केमते ऑप्टिमाइज अपन करा जिवो केमते ग्राउंड वाटर ट्रांसफर केमते ग्राउंड वाटर ट्रांसपोर्ट एवं केमते एफिशिएंटली ताको मैनेज अपन करा जिवो एफिशिएंटली ग्राउंड वाटर को मैनेज अपन करबा ग्राउंड वाटर ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंश्योर अपन करबा तो दीज आर द प्राइमरी एम ऑफ दिस भू नीर पोर्टल ओके सो मन रखंतु ये होची अपन थिला किछरा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मो टिके इन शॉर्ट अपन 1 मिनिट रे 2 मिनिट रे मु अपन टिके डिस्कशन अपन कर देउची जे आजिर क्लास रे हम कोन कोन पढिले सो आजिर क्लास रे आमे किछि इंपोर्टेंट MCQs डिस्कशन करथले सो देखि नंतु व्हाट इज बायोमाइनिंग पढिले इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम रॉक ओर्स और माइन वेस्ट तो साधारणतः एक्सट्रैक्शन सेठी हुए जोठी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अपन थाए राइट जो मेटल्स गुड़िक इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट सो जो गुड़ाक भाइबल तो ताको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू रे आमे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट अपन करू तापर ताको डिसॉल्व अपन करा जाय एंड सेथरो अपन फिल्टर्ड अपन को हुए देन आमे पढिले UNFC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमिशन ऑफ यूरोप जोरे कि 2004 को लॉन्च अपन कराई छि ये होछि यार होछि तीनोटी एक्सिस रे काम करे 3 डायमेंशनल एक्सिस E एक्सिस इकोनॉमिक वायबिलिटी F एक्सिस दैट्स योर फिजिबिलिटी असेसमेंट G एक्सिस दैट्स योर जियोलॉजिकल असेसमेंट सो यार काम होची इट क्लासिफाइज एंड मैनेजेस ग्लोबल मिनरल्स एंड वेरियस एनर्जी रिसोर्सेज सेथरे रिन्यूएबल एनर्जी आसीबो सो एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्सेज आसीबो पेट्रोलियम अपन आसीबो ए सब गुडी अपन पळे आसीबो नेक्स्ट हमें पढ़िले आपंकर एंटीबायोटिक उपरे सो एंटीबायोटिक्स होची कोन ना दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट योर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नॉट योर वायरल इन्फेक्शंस राइट एंटीबायोटिक होची जो गुडी को बैक्टीरिया को किल्स करे बा बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करे राइट दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक एवं पेनिसिलिन होची आपंकर एंटीबायोटिक जाको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 रे आपन डिस्कवर करथिले जा विषय में जानिचे सो इफ एंटीबायोटिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया देन ताको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ताको हमें कहबा नेचुरल एंटीबायोटिक जदि सेटा लैबोरेटरी तैयारी होची त ताको कहबा हम सिंथेटिक एंटीबायोटिक तापर हमें पढ़िले व्हिच ऑफ द अबव डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सो अपन जानचंती टाइफॉइड हला कॉलेरा हला एगुडी होची अपन बैक्टीरियल डिजीज बिकॉज़ टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कॉलेरा होची भाइबिरो कॉलेरा बैक्टीरिया सकासे हमरो ये कॉलेरा होची बट मलेरिया होची अपन प्रोटोजोआ राइट सो मलेरिया एनोफिलस मस्किटो सकासे अपन हुए सो एठी अपन बी अपन हबो नहीं 1 and 3 अपन करेक्ट आंसर हबो तापर हमें पढ़िले व्हाट इज जीन ड्राइव सो बेसिकली जीन ड्राइव रे हमें कोन करू ना हमें जीन को अपन मॉडिफाई करू सो दैट इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशंस सो एटा गोटे जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक द्वारा हमर जो पॉसिबिलिटी को हमें इंक्रीज अपन करू जेमति कि अपन कोथले Cas9 टेक्निक्स हमें कोथले राइट सो क्रिस्पार Cas9 टेक्निक्स अपन कोथले तो दिस इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ ए जीन बीइंग इनहेरिटेड तो को जीन इनहेरिट अपन होची तार प्रोबेबिलिटी बा तार लाइक्लीहुड को अपन इंक्रीज अपन करिया पई ये टेक्निक्स व्यवहार करा जाय जाको हमें जीन ड्राइव अपन को कहूचे सिमिलरली आमे पढुतले कि जेटा हार्वेस्ट फेस्टिवल सो जोंति कि आपनकर हार्वेस्ट फेस्टिवल रे आमे जेमति मकर संक्रांति कहूचे अपन ओडिसा रे जेमति कि माघ बिहु कहूचे अपन आसाम रे जेमति कि अपन पेड़ा पांड्यु अपन कहूचे आंध्र प्रदेश रे जेमति कि पोंगल अपन कहूचे तमिलनाडु रे जेमति कि किचेरी अपन कहूचे उत्तर प्रदेश रे राजस्थान गुजरात ताकू उत्तरायण कहा जाउची शिशुर संक्रांति अपन जम्मू कश्मीर रे ठीक अछि सो पंजाब होचे अपन लोहरी रे तो वेस्ट बंगाल ताको हमें पौषु संक्रांति अपन कहूचे सो दीज आर कॉमन नेम्स सो यारी ऊपर हमें आलोचना अपन करूथले एंड एठी अपन BC दीरा जक अपन भूल थिला पचाथला कोटा अपन करेक्ट तो आंसर होचे अपन गोटिए करेक्ट पोंगल तमिलनाडु ठीक अछि ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन तापर हमें पढिले भार्गवास्त्र अपन कोन सो हमें पढिले जे हमर जो
आर्मी एयर डिफेन्स रही तो ये गोटे माइक्रो मिसाइल सिस्टम्स आप डेभलप करछंती तो जहाँ द्वारा कि आमर जो ग्रुप ऑफ ड्रोन्स आप अटैक आप करुच्ची ताकू न्यूट्रलाइज आप करदेव बियॉन्ड योर 6 किलोमीटर रेंज रे 6 किलोमीटर दूर ही तो ये आप न्यूट्रलाइज कर सक्षम एक सक्सेसफुली टेस्ट सो इट इज अ मॉडर्न माइक्रो मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड टू एड्रेस द इंक्रीजिंग थ्रेट पोज्ड बाय द स्वार्म ड्रोन्स क्लियर तापर आम पढ़ले एस्केपेड पंच कोडेक्स तो एगुड़िक सब कौन ना एगुड़िक हूँ नासार सोलार मिशंस राइट जोटा कि प्रपोज्ड अपन रही सो ये सब हूँ नासार सोलार मिशंस सो जमती कि सन आउटर एटमोस्फियर को हेलियोस्कोप को कोरोना एटमोस्फियर को एक स्टडी करने तो ये सब हूँ नासार सोलार मिशन तापर आम पढ़ुले आप मेटा मटेरियल्स मुझे कहती जेहेतु जदिव यहाँ कन्वेंशनली मेटल्स एंड प्लास्टिक्स तैयारी बट दिस प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेटल्स एंड प्लास्टिक्स राइट सो एगुड़िक स्पेशली इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर द्वारा टेक्निक द्वारा तैयारी कराई सो इट इज नॉट फ्रॉम योर नानो मटेरियल्स तो भूल हम तो आम जो विक्टर भासेलगो यही नानो यही मेटा मटेरियल्स ये थ्योरी प्रपोज्ड अपन करते जहाँ एबे भी रिसर्च चली एंड जेहेतु लाइट रेज को कंप्लीटली बेंड अपन कर दूसरी लाइट रेज पास करूनी कंप्लीटली बेंड करुच्ची तेणु यार नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सकाशे सो यहाँ साधारणतः इट इज इनविजिबल अंडर द लाइट तेणु बी आमर ये करेक्ट आंसर हम तापर आम पढ़ुले टाटूज सो टाटूज गुड़िक कौन ना दीज आर लो कॉस्ट स्पेशली लीफ बेस्ड सेंसर्स कहुपर जार प्लांट्स जोटा कि प्लांट्स लीव्स रे प्लेस अपन करूँ एवं ता द्वारा वाटर को आम मॉनिटर अपन करूँ सो इट मेजर वाटर यूज एंड ट्रांसमिशन रेट्स इन क्रॉप्स सो आमर एग्रीकल्चरल प्रिसिशंस अपन डेवलपमेंट करने बा ड्रॉट रे केते जोटा कि अपन ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स अपन रहा बा भाविन तो जो गछ को अपन ठीक भाव में पानी मिलूनी तो आम से एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी को प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने राइट एंड आमर वाटर को ऑप्टिमम वाटर यूज अपन एनश्योर अपन करने आम टाटूज को बा जो प्लांट बेस्ड लीफ बेस्ड सेंसर्स अपन रहा ताको आम गछरे अपन लगाऊे सो दैट वाटर यूज को मेजर कर ट्रांसपिरेशन रेट्स को मेजर अपन कर एंड वी कैन टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली ओके फाइन सो सस्टेनेबल रेजिलिएंट अपन हवाई आम एक व्यवहार अपन करुचे सो टाटूज आर नथिंग बट दीज आर योर सेंसर्स नेक्स्ट अपन देखो आम पढ़ुले एडियाबेटिक प्रोसेस सो थर्मोडायनामिक्स दैट डील्स विथ योर हीट वर्क एंड एनर्जी ताको थर्मोडायनामिक्स अपन कहुए जो आम एडियाबेटिक प्रोसेस अपन कहे इट्स एन यूनिक प्रोसेस जो कि आप हीट एक्सचेंज अपन हुए ना देयर इज नो हीट इज एक्सचेंज सो नीदर हीट गेन नॉर हीट लॉस सो मुझे कहते जदि गोटे सिस्टम्स को आम कम्प्लीटली इन्सुलेटेड कर दूचे ताले कम्प्लीटली एनवायरनमेंट सहित तार कौन हीट इंटरेक्शंस अपन है ना सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एडियाबेटिक प्रोसेस ओके बा आम एत कंडक्टिंग अपन करवा माने देयर इज no time for heat exchange that will be also considered as an adiabatic process नेक्स्ट होची नेशनल लाइवस्टॉक मिशन विषय में पढ़ुले तो आम जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी अपन रही तो यारी द्वारा हूँ नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अपन लॉन्च अपन कराए साधारणतः कैटल्स एंड बफालोस अलोंग विथ योर रुमिनेंट्स ओके रुमिनेंट्स रे जमती कि अपन सीप कहवा गोट्स अपन कहवा एंड पोल्ट्री ओके तो ये समस्त अपन आसो सो से यार मेन इंपोर्टेंस अपन हूँ केमी अपन मिल्क प्रोडक्शंस केमती अपन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव केमती अपन माने इंप्रूवमेंट केमती अपन हम सो ता सहित केमती एग प्रोडक्शंस अपन हम केमती मीट प्रोडक्शंस अपन आहरी डेवलपमेंट अपन हम सो कैमेल्स याक्स ये सबू अपन एथे इन्वॉल्व अपन अच्छा सब इंक्लूड अपन अच्छा तो ये एक्सक्लूड्स अपन देता ये एक्सक्लूड स्मॉल रुमिनेंट्स जो स्टेटमेंट अपन भूल होता क्लियर नेक्स्ट अपन देखो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 तो आमर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रही जो सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर रही से आमर इकोनॉमिक एवं सोसाइटी रे कौन कौन साइबर थ्रेट्स अपन रही सो जो आमर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जहाँ सब डेवलपमेंट होची तो सही परिप्रेक्षी में कौन कौन अटैक अपन हो पारे संभवतः अटैक अपन हो पारे सो सेगुड़िक को मेजर अपन कराउची सो सेगुड़िक को माने पब्लिश अपन करा जाए थ्रू दिस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 तो जार मुख्य उद्देश्य अपन होची केमिति आमे साइबर सिक्योरिटी को लेकिन केमिति आमे गोटे रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स अपन डेवलपमेंट करबा एवं एको किए से रिलीज करे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ताको रिलीज करे प्रोजेक्ट आकाश 3 एटा होची ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस जो तरे कि आमे एयर डिफेंस सिस्टम्स को सिक्योर करिया को चेष्टा अपन करछे सो थ्रू ऑटोमेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी जदी किछि भी थ्रेट्स अपन आसिला एयर को आसिला ताल ताको से अपन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करिवो एवं तार फोटो मध्ये हमकु पठेइबो एवं आमे ताको रिपोर्ट अपन कर देबो सो दैट नेसेसरी एक्शन कैन बी टेकन ऑक्टेट टूल लो कथा कहथली तो इट इज नथिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट साधारणतः जो हमर आउटर सेल थाए तो से आइदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करिवो ना लूज करिवो एवं से निजे तार नियरेस्ट नोबेल गैस सहित स्टेबल होवा पे से चेष्टा करिवो राइट तो एटा होची सी हमर एठी करेक्ट आंसर हे जिवो सनस्क्रीन केमिति माने केमिति आपनकर स्किन को प्रोटेक्ट करे मु डिटेल डिस्कशन करूथली सो हमर दी टाइप रो अछि गोटे होछि आपन केमिकल यूवी फिल्टर जोटा कि यूवी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करे आ गोटे होछि आपन सनस्क्रीन जोटा कि यूवी रेडिएशंस को स्कैटर करे तो एठी बी मोर करेक्ट आंसर हे जिवो ऑब्जर्विंग एंड स्कैटरिंग यूवी रेज आपन करेक्ट आंसर हे जिवो
तापर आम पढ़ुले ग्रोथ रेगुलेटरीज इन प्लांट्स जमीक ऑक्सिन गिबरलिन साइटोकिनिन इथिलिन एब्सिसिक एसिड 5टा आप भल भाव पढ़े मुझे डिटेल डिस्कसन करी सो आम पढ़ले ऑक्सिन हूँ डिले इन लीफ फॉल कराए गिबरलिन हूँ स्टेम एलोंगेशन अपन कराए साइटोकिनिन आपंकर एजिंग को प्रिवेंट करे एथिलिन हूँ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में रेस्पॉन्सिबल क्लियर एंड अपन लास्ट अपन एब्सिसिक एसिड अपन कहली जोटा कि ग्रोथ इनहिबिटर्स राइट या विषय में डिस्कसन अपन कले तापर पढ़ले सो आमर नचिकेत मोर कमिटी गोटे कमिटी अपन एस्टाब्लिशमेंट करथिला आरबीआई 2013 रे रिलेटेड टू द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इन इंडिया तो आमर जो गाँ गहली रे स्मॉल स्केल बिजनेसमैन रहिले सो तांको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करिया पे पेमेंट बैंक्स अपन स्टार्ट हेची ऑपरेशन कवच र कथा अपन कहथली सो अलॉन्ग विथ इंडियन आर्म फोर्स सो दिल्ली पुलिस अपन रे लॉन्च अपन करिछि मिशन जहा नाउ छ ऑपरेशन कवच सो जोथरे कि हमें ड्रग्स को केमते अपन कॉम्बैट अपन करा जिवो सो सेटा होछि अपन मेन मोटिव सिमिलरली हमर नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड आमर CGWA ओके यार मिलित उद्यम रे गोटे पोर्टाल आपंकर लॉन्च अपन कराई ग्राउंड वाटर को केमते मैनेज अपन करा जिवो केमते एफिशिएंटली यूज अपन करा जिवो फाइन सो फॉर दैट रीजन से भू नीर बोली कि गोटे पोर्टाल अपन लॉन्च हेची तो ये होचे करंट अफेयर्स रा क्वेश्चन सो दिस इज ऑल योर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू सो जहार किछि भी जदी डाउट थिबो केबे ताले अपन मते पछारिबे मेसेज अपन कर देबे सो आई थिंक एमती रिविजन सीरीज आपंपाई आम आणुचु राइट आम 4टा रिविजन सीरीज मुझे आनी सारे आपंकर सो जदि समस्त क्लास भल लगी थाए सो देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट सो पुणी आम आगू को सेशन आप कंटिन्यू आप रखा टिलर एग्जाम सो थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल लेट्स टू एंड ऑफ दिस क्लास थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय थैंक यू।